Okay, friends, once again, welcome back and a very good afternoon to everybody. I hope you all are safe, your family member, your friends, your relative, your parents, all are safe, and you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, we are discussing a wave optics, and as I had told you, three phenomena are very important: interference, diffraction, and polarization. So far, we had completely completed interference, and we had learned a very intelligent kind of numerical at the last lecture for the interference as well, and we also had just started the introduction of the diffraction. So what is the diffraction? So we had learned that the diffraction is the of effect produced by the bending of the waves from some opaque surface, that is called the diffraction. And one particular definition of the diffraction is effect produced by the limited part of the wavefront. In the Ripple tank experiment, we had seen that after being passed from the slit, only limited part of the wavefront is going to be came out from the slit. So we can also say that diffraction is the effect produced by the limited part of the wavefront. That is also a diffraction. Uh, Grimaldi, Grimaldi was the person who discovered the diffraction phenomenon. And two kind of diffractions are so far possible. If on any slit, if on any slit, if a plane wavefront is incident on any slit, if a plane wavefront is incident, then it is said to be a Fraunhofer diffraction. And if on any slit a spherical wavefront is incident, then it is said to be a Fresnel diffraction. So today we are going to discuss the Fraunhofer diffraction. तो Fraunhofer diffraction में क्या होता है भैया? उसमें प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट होता है, एंड फ्रेनल डिफ्रैक्शन के अंदर स्फेरिकल वेव फ्रंट इंसिडेंट होता है स्लिट के ऊपर. तो today we are going to discuss the Fraunhofer diffraction by the single slit. तो क्या होता है भैया? हाँ, हमने ये भी डिस्कस कर लिया था क्वेश्चन नंबर 24, और उसके बाद 25 भी, 26 हमने डिस्कस किया था, 27 भी हमने डिस्कस कर लिया था. उसके अंदर हमने ये देखा था कि लाइट वेव का बेंडिंग कम रहता है तो उसका डिफ्लेक्शन कम होता है, उसमें लैम्डा बाई डी रेशियो कम होता है. While in the case of sound wave, the lambda by d ratio is larger. So diffraction of the sound wave is larger. So now today we are going to discuss the diffraction by the single slit, that is also known as a Fraunhofer diffraction. So friends, before starting the Fraunhofer diffraction, I am going to discuss one experiment. फ्रेंड्स, कभी आपने टॉर्च को मतलब वॉल के सामने रखा है? यस सर. तो आप डार्क रूम के अंदर टॉर्च को वॉल के सामने रखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा वॉल के ऊपर? ब्राइट स्पॉट. So you will get the bright spot. Okay, very good. Apart from that, anything else? और कुछ? तो फ्रेंड्स, देखो, जब आप अभी एक काम करना, आज के दिन पे ही आप एक काम करना, आप एक एक्सपेरिमेंट करना. आप है ना एक टॉर्च लेके रूम को बंद करके सारे लाइट्स ऑफ करके उसको डार्क बना देना, और उसके बाद आप है ना वॉल पे उसको टॉर्च को चालू करना. Sir, dark bright, So definitely you will get this kind of dark bright spot, this kind of bright spot exactly in the middle. बट उसके आजू बाजू आपको कुछ दिखाई देगा, उसके आसपास आपको कुछ ना कुछ ऐसे डार्क पार्ट मिलेगा, और इसके आजू बाजू वापस से आपको कुछ ब्राइट पार्ट मिलेगा. मतलब उसका इंटेंसिटी थोड़ा कम हो जाएगा, उसका इंटेंसिटी थोड़ा कम हो जाएगा, बट आपको डेफिनेटली ऐसा कुछ आपको देखने में आएगा.
तो ये एक्सपेरिमेंट आप ट्राई करना, मैं जो बोल रहा हूँ उसको देखना क्या ऐसा हो रहा है। तो यू तो बट ऐसा तो कोहेरेंट सोर्सेस में ही होता है ना। देखो, ये कोहेरेंट सोर्स की तो बात ही नहीं है। कोहेरेंट सोर्स में तो क्या होता है पता है आपको, पूरे स्क्रीन के उसमें तो पूरा अलग चीज है, उसमें ऐसा नहीं होगा। उसमें तो क्या होगा, इसमें सपोज कि ये आपका स्क्रीन है, राइट? तो स्क्रीन के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर कोहेरेंट सोर्सेज के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में आपको क्या मिलेगा, आपको एक पूरा, यहाँ पे आपको पूरा एक ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, फिर उसके आजू बाजू डार्क फ्रिंज मिलेगा, वो पूरा चीज अलग है। और उसमें सारे फ्रिंजेस के जो इंटेंसिटी होते हैं ना वो सेम होते हैं, जितने भी फ्रिंजेस है उसके इंटेंसिटी सेम होते हैं, वो अलग फिनोमिनन है। वहां पे पैटर्न अलग टाइप का है। देखो यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ वो पैटर्न पूरा अलग टाइप का है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मतलब बीच में जो होगा ना स्पॉट, उसका इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद आपको एक डार्क रिंग मिलेगा, रिंग। उसके बाद वापस एक ब्राइट रिंग मिलेगा, बट उसका इंटेंसिटी है ना वो सेंट्रल में जो है स्पॉट उससे बहुत ही कम होगा। एंड ग्रेजुअली ऐसे डार्क लाइट, डार्क ब्राइट आपको रिंग मिलते रहेंगे और इंटेंसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाएगा। अभी आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे करना, ट्राई करना, यू विल डेफिनेटली गेट दिस काइंड ऑफ। मोबाइल के टॉर्च से नहीं चले, मोबाइल के लाइट से वो नहीं आएगा, बट वो लाइट जो होता है ना वो स्फेरिकल, वो सिलिंड्रिकल टाइप का जो होता है ना टॉर्च, उसमें अगर आप ट्राई करोगे ना तो आपको डेफिनेटली इस टाइप का कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसा होता है, अगर आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे करोगे तो आपको ऐसा मिलेगा। तो यहाँ पे जो सेंटर में मिलता है, एक्जेक्टली सेंट्रल में, तो इसको क्या बोलेंगे पता है आपको? इसको हम बोलेंगे सेंट्रल मैक्सिमा। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे भैया? सेंट्रल मैक्सिमा। उसके आजू बाजू जो डार्क रिंग है उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? फर्स्ट मिनिमम। उसके आजू बाजू जो वापस से ब्राइट रिंग है, ब्राइट फ्रिंज है, ब्राइट रिंग जो पार्ट है उसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट मैक्सिमा। उसके बाद वापस से जो डार्क रिंग है उसको क्या बोलेंगे? कोई बताएगा? आप तो पता चल जाना। सेकंड मिनिमा। सेकंड मिनिमम। तो ये जो है ना वो अलग है। और जो ये जो है वो डिफ्रैक्शन पैटर्न है, ये जो है वो डिफ्रैक्शन पैटर्न है, ये जो है वो डिफ्रैक्शन पैटर्न है। और ये जो पैटर्न है वो कौन सा है? इंटरफेरेंस पैटर्न है। दोनों अलग चीज है। इज दैट क्लियर टू यू रनीश? यस सर। तो डिफ्रैक्शन जो होता है वो सिंगल स्लिट, ओनली वन स्लिट के वजह से होता है। वाइल इंटरफेरेंस के लिए हमको कितने स्लिट्स होने चाहिए, कितने हमको हमारे पास सोर्स होने चाहिए? We have to have a two coherent sources to have a interference pattern. तो इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए आपके पास दो कोहेरेंट सोर्स होने चाहिए, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं वी हैव टू हैव टू स्लिट्स ओवर दैट। बट इन द केस ऑफ डिफ्रैक्शन फिनोमिनन यू हैव ओनली अ सिंगल स्लिट। तो उसमें क्या होता है कि स्लिट के ऊपर आपको स्लिट इज इल्यूमिनेटेड बाय आइदर प्लेन वेव फ्रंट और बाय स्फेरिकल वेव फ्रंट। अगर प्लेन वेव फ्रंट आता है तो जो डिफ्रैक्शन फिनोमिनन होगा उसको फ्रॉन हॉफर डिफ्रैक्शन बोलते हैं। अगर आपका वेव फ्रंट स्फेरिकल है तो उसको फ्रेनल डिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो अभी जो मैं बात कर रहा हूं वो फ्रॉन हॉफर डिफ्रैक्शन की बात कर रहा हूं। आप देखो आपके जो टॉर्च है उसमें वही फिनोमिनन होगा। क्यों ऐसा होगा? देखो टॉर्च अगर आप देखोगे तो उसके अंदर की साइड एक बल्ब होगा, वो लाइट का सोर्स है, राइट? एम आई राइट? यस। यस सर। और वो टॉर्च के आगे थोड़ा ऐसा आगे की साइड ऐसा होता है। तो वो जो उसको कन्फाइन करने के लिए, वो जो लाइट बाहर निकले उसको कन्फाइन करने के लिए आगे की साइड थोड़ा ऐसा होता है। देखा आपने कभी? तो सर बल्ब, हाँ बोलो। तो कुछ एल्यूमिनियम का हाँ, वो तो होता है क्या। एल्यूमिनियम का तो इसलिए होता है कि पीछे की साइड कोई जाए लाइट है ना, वो पीछे की साइड ना जाए, वो रिफ्लेक्ट होके फ्रंट साइड ही जाए, इसलिए वो एल्यूमिनियम सरफेस तो इसलिए लगाया होता है। देखो सीधी सी बात है, कोई भी लाइट सोर्स है तो उसके अंदर से लाइट तो सारे डायरेक्शन में प्रोड्यूस होने वाला है, तो उसको सब जगह पे जाने वाला, उसको सब जगह पे जाने की इच्छा होती है। बट हमारा टारगेट क्या होगा? हमको
हमको क्या करना है कि कोई पर्टिकुलर पोजीशन पे उसको फोकस करना है लाइट का। इज इट क्लियर? तो वो जो एल्यूमिनियम Yes. होता है ना, वो तो क्यों किया होता है कि पीछे की साइड जो भी रेज जाएगा वो वापस से रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाए, इसके वजह से वो वैसे वो उसको भी थोड़ा थोड़ा क्या किया होगा पता है आपको? उसको भी ध्यान से देखना, उसको भी उन लोगों ने थोड़ा मतलब ऐसे कॉर्न शेप में उसको एल्यूमिनेट वो एल्यूमिनियम हाँ सर, क्यों? कौन शेप में? हाँ, वो इसलिए कि वो रिफ्लेक्शन के वजह से ऑटोमेटिकली एग्जैक्टली फिर लीनियर हो जाए, आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड वो सीधा बाहर निकले रेज। अंडरस्टूड? अच्छा, ओके, यस सर। तो वो हुआ राइट। बट फिर भी ऐसा है कि जो लाइट आगे की साइड जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको सब जगह पे निकलना है बाहर, बट वो जो आगे का जो एज है वो सर्कुलर एज क्या करेगा? वो सर्कुलर उसको जाने का मना करेगा। डिफरेंट नहीं होने देगा। एक टाइप का वो ऑब्स्टेकल हो गया। एम आई राइट फ्रेंड्स? यस सर। तो वो ऑब्स्टेकल हो गया तो फिर कौन सा फिनोमेनन यहाँ पे डेवलप होगा? डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन फिनोमेनन डेवलप होगा। और फिर आगे आप देखते हो तो उसमें एक लेंस भी होता है। अगर वो टॉर्च का आप खोलते हो आगे की साइड से तो एक लेंस भी होता है, वो ग्लास का लेंस। हाँ, यस सर। तो उसके वजह से क्या होगा कि वो पूरा ये टाइप का पैटर्न यहाँ पे जनरेट होगा। तो ये पैटर्न क्यों जनरेट होता है, सेंट्रल मैक्सिमा क्यों जनरेट होता है, उसके आसपास फर्स्ट मिनिमा क्यों जनरेट होता है, ऐसा क्यों होता है, और ये इंटेंसिटी रिड्यूस क्यों होता है, उसके बारे में पूरा डिस्कशन आज का हमारा है। तो आज का पूरा टास्क आप समझ में आया आपके, हमको क्या करना है आज के लेक्चर में? यस सर। तो आज हम सबसे पहले सेंट्रल मैक्सिमा क्यों डेवलप होता है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फर्स्ट मिनिमा एंड कंडीशन फॉर द अदर मिनिमाज, फर्स्ट मिनिमा का कंडीशन और दूसरे जो मिनिमाज है सेकंड थर्ड ऑनवर्ड्स, तो उसके कंडीशन डिराइव करेंगे। और उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आज का जो होगा वो फर्स्ट मैक्सिमा हम डिस्कस करेंगे एंड अदर मैक्सिमास के कंडीशन हम डिस्कस करेंगे। तो आज का पूरे लेक्चर का टास्क आपको समझ में आया क्या करना है आज? यस सर। ओके। तो फ्रेंड्स, तो फिर आज हम फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन का टॉपिक जो है वो इम्पोर्टेंट है। आज के तीनों क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो ये चैप्टर है ना, है तो बहुत बड़ा, बट सीबीएसई वालों ने भी और गुजरात बोर्ड वालों ने भी कुछ टॉपिक यहाँ पे ओमिट कर दिए हैं। पूरा पोलराइजेशन निकाल दिया है एंड पूरा जो रिजोल्विंग पावर ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप के रिजोल्विंग पावर के जो थ्योरी थे वो भी निकाल दिया है। तो वो चीज़ बहुत ही अच्छी है, उसको करना ही पड़ेगा, वो हम बाद में करेंगे। वो जेडब्ल्यू के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट अभी हम उसको एलिमिनेट कर देंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी ये जो चैप्टर है ना वो 11 मार्क्स का चैप्टर है, बट 11 मार्क्स के अंदर 5 बोर्ड के, मैं आपके जो गुजरात बोर्ड वाले बच्चे हैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। सीबीएसई वालों बच्चों के लिए ये रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स दोनों का मिला के 14 मार्क्स का वेटेज हो रहा है, 1-4 हाईएस्ट वेटेज अमंग्स दी ऑल द चैप्टर्स। रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स को मिला के सीबीएसई में 14 मार्क्स का वेटेज है, हाईएस्ट वेटेज है। तो आई थिंक सीबीएसई वालों को 70 मार्क्स का पेपर आता है ना, एम आई राइट आशीष? हाँ सर। तो पेपर बोर्ड का कितना मार्क्स का होता है? 70 सर। तो 70 मार्क्स में से 15 मार्क्स 14 मार्क्स रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स इज हैविंग अ वेटेज ऑफ 14 मार्क्स फ्रॉम द 70 मार्क्स, तो इट इज अ वेरी लार्ज वेटेज। तो चीज ऐसी है कि इसमें कुछ टॉपिक कैंसिल कर दिए तो आपके लिए बहुत ही इजी रह जाएगा इसको प्रिपेयर करना। जैसे गुजरात बोर्ड वाले के लिए मैं बोलूँ तो ओनली 14 न्यूमेरिकल्स, इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 5 एंड एक 7th इलस्ट्रेशन है एंड एक्सरसाइज के 1 to 7 एंड 10th। तो एक्सरसाइज के 1 to 7 क्वेश्चन प्लस 10 क्वेश्चन मतलब 8 क्वेश्चन एक्सरसाइज में एंड इलस्ट्रेशन में 6 क्वेश्चन, मतलब 14 मार्क्स 14 न्यूमेरिकल ही है। और उसमें से एक न्यूमेरिकल कंफर्म्ड आएगा बोर्ड के एग्जाम में। ये जो आपका पेपर स्कीम है गुजरात बोर्ड का उसमें ऐसा है कि 5 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे एंड 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे। एनसीईआरटी वालों का भी सीबीएसई वालों को भी ऑलमोस्ट ऐसा ही है। तो एक कंफर्म्ड एक न्यूमेरिकल, वो 14 न्यूमेरिकल कर लोगे तो एक न्यूमेरिकल कंफर्म्ड आएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है उसमें से एक न्यूमेरिकल आएगा एक थ्योरी आएगा। तो अभी जो मैं थ्योरी आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ दैट इज ऑलमोस्ट लास्ट थ्योरीज ऑफ दिस चैप्टर प्रिपरेशन के लिए। इसके अलावा और भी 2 थ्योरी बाकी है, 2 थ्योरी और करना है आपको, वो मैं बता दूंगा बाद में कौन सा करना है। बट कम प्रिपरेशन करना है आपको, ज्यादा प्रिपेयर नहीं करना है, समझो आप।
तो आराम से आप मार्क्स को थोड़ा अगर थोड़ा अगर आप थोड़ा स्मार्ट थिंकिंग करो तो ये इजीली आप ये मार्क्स गेन कर सकते हो। इस टाइप का सिचुएशन अभी हो गया है। तो फ्रेंड्स अभी सेंट्रल मैक्सिमा क्यों डेवलप होता है वो अब हम डिस्कस करेंगे। तो आपके मोबाइल के स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 28 आपको दिख रहा है फ्रेंड्स? Yes, sir. ओके, नाउ एवरीबडी कैन सी द सोर्स एस। क्या आपको सोर्स एस दिख रहा है यहाँ पे? यस सर। अब सोर्स जो है ना वो पॉइंट लाइक सोर्स है। तो कोई मुझे बताएगा ये पॉइंट लाइक सोर्स है तो उसमें से किस टाइप के वेव फ्रंट बाहर निकलेंगे? स्फेरिकल। ओ वेरी गुड, इट इज स्फेरिकल वन। एकदम सही बात। कौन बोला? कौन बोला? सर रेशा। रेशा। वेरी गुड। तो अगर पॉइंट लाइक सोर्स है तो डेफिनेटली स्फेरिकल काइंड ऑफ वेव फ्रंट इज गोइंग टू बी जनरेट। वेरी गुड। अब जो है ना चीज ऐसी है कि नो डाउट वो जो वेव फ्रंट है वो स्फेरिकल है, सही बात है। बट अब उसको है ना ये लेंस में से पास होना है। तो लेंस में से उसको पास करना है स्फेरिकल वेव फ्रंट को। बट ये जो डिस्टेंस है ना वो एग्जैक्ट फोकल लेंथ है। तो आपको पता है मैंने है ना ये सोर्स को एग्जैक्टली फोकल पॉइंट पे रखा हुआ है। तो अगर फोकल पॉइंट पे रखा हुआ है तो आफ्टर बीइंग रिफ्रैक्टेड जो लेंस में से जो रेज बाहर निकलेंगे वो कैसे हो जाएंगे? आफ्टर बीइंग रिफ्रैक्टेड Parallel. वो एक दूसरे से पैरेलल हो जाएंगे। एम आई राइट फ्रेंड्स? यस और नो? Yes, sir. अभी जो आपका वेव फ्रंट बाहर निकलेगा, वेव फ्रंट आपको याद होगा कि वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेज। वेव फ्रंट जो होता है वो रेज से परपेंडिकुलर होता है। तो अब मुझे बताओ अभी हमारा जो वेव फ्रंट हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? Plane. प्लेन हो जाएगा। एक क्वेश्चन भी था, एक क्वेश्चन भी था ऐसा, हमने वो डिस्कस, आई थिंक एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन वही था या इलस्ट्रेशन का सेकंड क्वेश्चन यही था कि अगर हम सोर्स को लेंस के फोकल पॉइंट पे रखते हैं तो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट रिफ्रैक्टेड लेंस में से बाहर निकलेगा वो वेव फ्रंट कैसा होगा? तो वो वेव फ्रंट आपका हो जाएगा प्लेन वेव फ्रंट। क्या ये आपको समझ में आया? इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आया? Yes, sir. यस सर। ये आपका प्लेन वेव फ्रंट हो गया। अब मुझे ये बताओ कि अभी हमने एक स्लिट यहाँ पे डेवलप किया है। आप देख सकते हो कि ये LM जो है ना LN ये जो है ना वो एक स्लिट है, एक टाइप का ऑब्स्टेकल है। ये प्लेन वेव फ्रंट वहां पे इंसिडेंट हो रहा है तो वो एक टाइप का वेव फ्रंट को पास नहीं, देखो 100% उसको पास नहीं करने नहीं देगा वो। तो वो 100% पास नहीं करने देगा तो उसका मतलब क्या होगा? डिफ्रैक्शन। हाँ, तो वहां पे ऐसा होगा कि इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द लिमिटेड पार्ट ऑफ द वेव फ्रंट। तो ये वेव फ्रंट का थोड़ा ही पार्ट उसमें से पास हो पाएगा। तो क्या होगा भैया? वहां पे डिफ्रैक्शन होगा। तो उसमें से कुछ रेज ऐसे होंगे कि जो सीधे जाएंगे, कुछ रेज ऐसे होंगे जो टेढ़े मेढ़े आड़े जाएंगे। तो पूरा मतलब ये एक यहाँ पे बहुत सारे रेज ऐसे भी है जो सीधा जा रहा है, कुछ रेज ऐसे भी है कि ऊपर की साइड थीटा एंगल बना के जा रहा है, कुछ ऐसे भी होंगे कि जो यहाँ से नीचे की साइड थीटा एंगल बना के जाएंगे। पॉसिबल है ना भैया? भी पॉसिबल है, तो ऐसा भी होगा। और अगर सर हाँ बोलो। सर सिर्फ L और N पॉइंट से ही डिफ्रैक्शन नहीं होगा क्योंकि बीच में तो सब फ्री स्पेस है। नहीं, आप समझ नहीं पा रहे हो भाई। मैं आप लास्ट लेक्चर भूल गए, मैं दिखाऊं आपको क्या होता है। वो आप याद करो, आपने एक एक्सपेरिमेंट लर्न किया था रीपर टैंक का। उसमें क्या था? ये दो ऑब्स्टेकल है, राइट? तो यहां तक जो आपका वेव फ्रंट था वो ऐसे था, ऐसे था, राइट? ऐसे आ रहा था। ओके, फिर आपका वेव फ्रंट कैसा हो गया था? वेव फ्रंट तो आया था तो ऐसे ऐसे आया था। ये आपका वेव फ्रंट है, ऐसे आया था। फिर क्या हुआ था? फिर बाहर निकलते टाइम क्या हुआ था? उसका कुछ ऐसा बेंडिंग हुआ था ना। तो रे तो हम अपनी
मतलब हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ऐसे उसको रे के हिसाब से कंसिडर करते हैं, बट एक्चुअली रे इज जस्ट अवर कंसेप्ट। वो एक्चुअल में कोई रे नहीं होता है प्रोपोगेशन में। प्रोपोगेशन में तो वेव्स होते हैं और ये वेव फ्रंट ऐसे बनेगा। रे तो हमारे समझने के लिए एक टाइप का इमेजिनेशन है, तो ये बीच वाला तो सीधा रहेगा बट बाकी के सारे रेज ऐसे हो जाएंगे। अंडरस्टूड? इज इट ओके? Yes, अंडरस्टूड? yes, sir. तो कुछ सीधे जाएंगे, कुछ आड़े टेढ़े मेढ़े जाएंगे। क्या ये अभी पता चला आपको? Yes, sir. ओके। तो फिर होगा क्या कि अगर हम इसको सामने के तरफ और बीच में यहाँ पे एक लेंस भी रखते हैं, यहाँ पे आपको पता है लेंस का मेन रोल क्या होता है पता है? जो इमेज बहुत दूर फॉर्म होने वाला है ना, उसको वो थोड़ा नजदीक लाके फॉर्म करेगा और कुछ नहीं। लेंस का मेन एम ये होता है कि वो जो चीज बहुत दूर तरफ होने वाली है उसको थोड़ा वो नजदीक लाके करेगा। तो अगर उसमें बीच में आप लेंस डाल देते हो और फिर यहाँ पे स्क्रीन रखते हो, फिर यहाँ पे सपोज कि आप स्क्रीन रखते हो, तो स्क्रीन पे आपको क्या मिलेगा भैया? अभी जो हमने एक्सपेंड किया था ना टॉर्च वाला, वही मिलेगा यहाँ पे। तो ये स्क्रीन के ऊपर आपको ऐसे पूरा एक पैटर्न जनरेट मिलेगा, पैटर्न जनरेट होगा ऐसा। इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड्स? ये पूरे यहाँ पे Yes, sir. एक पूरा ऐसा पैटर्न जनरेट होगा। इज दैट क्लियर? तो ये हो गया आपका एक्सपेरिमेंट। तो दिस इज द phenomenon of a single slit Fraunhofer diffraction। बट मुझे आपको अभी क्या समझाना है? चलो, तो मुझे तो अभी आपको क्या समझाना है भैया, बोलो। सर हमारी टॉर्च में तो स्लिट होता नहीं है। मैं बोला ना कि टॉर्च में जो एज होती है ना, एज, तो वो क्या करेगी? वो लाइट को सब जगह पे जाने से रिस्ट्रिक्ट करेगी। तो वो क्या भी है, एज अभी वो क्या भी हुआ, मैंने पहले ही बता दिया आपको। अच्छा, ओके सर। वो स्लिट ही हो गया ना एक टाइप का। यस सर, यस। हाँ, तो मुझे आपको क्या समझाना है? मुझे आपको समझाना है सेंट्रल मैक्सिमम। तो भैया बहुत सारे रेज ऐसे हैं कि जो सीधे जा रहा है। तो जो रेज सीधे जा रहा है तो उसका सारे रेज का पाथ कैसा होगा? उन लोगों का पाथ कैसा होगा? सेम होगा? यस और नो? Yes, sir. Yes. तो जो भी रेज सीधे जा रहा है वो सारे रेज के पाथ सेम हो गए। तो अगर उसके पाथ सेम है तो उन लोगों के बीच में पाथ डिफरेंस क्या होगा? 0. 0 हो जाएगा। तो मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ कि अगर पाथ डिफरेंस 0 है तो कौन सा टाइप का इंटरफेरेंस होगा? कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव? Constructive. The ray which have 0 diffraction angle, जिसका डिफ्रैक्शन एंगल 0 है, they are having सेम ऑप्टिकल पाथ, सबका पाथ सेम है। सो पाथ डिफरेंस क्या होगा भैया? क्या होगा? तो 0 हो जाएगा। 0. कौन सा कंडीशन उसने फॉलो किया? ये एन लैम्डा वाला कंडीशन फॉलो किया या 2n-1 लैम्डा बाई 2 वाला कंडीशन फॉलो किया? मुझे ये बताओ कौन सा वाला कंडीशन उसने फॉलो किया होगा, एन लैम्डा या 2n-1 लैम्डा? कौन सा कंडीशन फॉलो किया, कोई मुझे बता पाएगा? एन लैम्डा। एन लैम्डा। तो मतलब कंस्ट्रक्टिव हुआ या डिस्ट्रक्टिव हुआ? Constructive. कंस्ट्रक्टिव हुआ। तो मतलब जितने भी रेज सीधे जाएंगे वो एक दूसरे के साथ सुपरपोज होंगे और सबके बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो वहां पे इंटेंसिटी Maximum. मैक्सिमम मिल जाएगा। एंड दैट इज व्हाट इज आवर Central. Maximum. सेंट्रल मैक्सिमा। सोच लो, क्या ये चीज आपको पता चली भैया?
Yes. तो अगर आपको कोई ऐसा पूछे, अगर कोई आपको ऐसा पूछे कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर द सेंट्रल मैक्सिमा, तो आपको ये लिखना है कि कंडीशन फॉर द सेंट्रल मैक्सिमा is the angle of diffraction must be 0। जिन लोगों का डिफ्रैक्शन एंगल 0 है, वो जो सीधा जा रहा है, जो जितने भी रेज सीधे जा रहा है, वो लोग एक दूसरे के साथ मिलके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे। तो कंडीशन फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन इज 0, दैट इज द कंडीशन। चलो ये चीज समझ में आई भैया? तो यहाँ पे मैंने Yes, sir. यहाँ पे मैंने सिंगल डिफ्रैक्शन बाय अ सिंगल स्लिट मैंने एक्सप्लेन कर दिया, एंड मैंने ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि कंडीशन फॉर द सेंट्रल मैक्सिमा क्या है। अब मैं एक और चीज करने वाला हूं, मैं यहाँ पे पाथ डिफरेंस, अगर आपका एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन 0 नहीं है, अगर आपका एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन 0 नहीं है, सपोज के एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन थीटा है, तो उसके लिए पाथ डिफरेंस क्या होगा, वो मैं यहाँ पे एक इक्वेशन डिराइव करने वाला हूं, जिसका यूज अब नेक्स्ट ऑनवर्ड क्वेश्चंस में होगा। तो अभी मैं क्या करने जाने वाला हूं, इसके लिए फॉर्मूला डिराइव करने वाला हूं। एक पाथ डिफरेंस डिराइव करने वाला हूं। इफ एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, अगर आपका डिफ्रैक्शन एंगल थीटा है, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन थीटा है ऐसा मान लो, तो जैसे फिगर के अंदर आप देख सकते हो कि एल एंड एन में जो थीटा एंगल से डिफ्रैक्ट हुए, देखो देखा आपने कुछ रेज देखा? हाँ के ना तो बोल दो। ये जो यस सर। ये जो रेज है ना, वो उसका एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन आप देख सकते हो कि थीटा है। दिख रहा है आपको? Yes, sir. यस सर। अच्छा, और यहाँ पे पॉइंट क्यू है, ये क्यू ऊपर की साइड दिख रहा है, उसको मैं थोड़ा नीचे की साइड लिख रहा हूँ, चलेगा? ये पॉइंट क्यू को निकाल देते हैं, ऊपर से नीचे की साइड लिख देते हैं, राइट? तो अब मुझे यहाँ पे सपोज के दे आर मीटिंग एट द पॉइंट पी, ये पॉइंट पी की तरफ जा रहा है। सो एट पॉइंट पी, अगर पॉइंट पी के बारे में सोचो, तो एट पॉइंट पी ऑन अ स्क्रीन, पाथ डिफरेंस बिटवीन एल एंड एन, तो यहाँ पे एल एंड एन में से जो रेज निकलेंगे, देखो एल देखा आपने, एन देखा, तो वहां से जो रेज निकलेंगे उन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा? कैन आई से इट इज एन पी माइनस एल पी, एन टू पी का पाथ माइनस एल टू पी का पाथ, चलेगा? यस सर। बट अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो, तो आपको ये दिखाई देगा कि ये जो आपका एल से पी का जो पाथ है एंड क्यू से पी का पाथ जो है वो सिमिलर है। देखो ये क्यू यहाँ पे है, दिस इज अ क्यू, तो यू कैन सी दैट द एल टू पी एंड क्यू टू पी ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट नहीं सेम टू सेम। देखो देख सकते हो आप, दिख रहा है आपको? यस सर। तो एल पी एंड क्यू पी तो सेम ही है, तो फिर एल एंड एन के बीच में कितना डिफरेंस आ जाएगा? तो आई कैन से एन एल क्यू माइनस एल पी के बदले, हाँ ये रहा, माइनस एल पी के बदले आई कैन राइट क्यू पी। तो अब सोच के बताओ कि एन पी माइनस क्यू पी करोगे तो क्या बचेगा? एन पी माइनस क्यू पी करोगे तो क्या बचेगा? एन क्यू। एन क्यू। चलो यहां तक समझ में आया? पाथ डिफरेंस हम लिख सकते हैं कि एन क्यू है। यहां तक समझ में आया? यस सर। ओके, अब सीधी सी बात है, ऐसी है कि यहाँ पे अगर एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, ये वाला। अगर यहाँ पे थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। पूछो क्यों? क्यू।
क्योंकि मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने ऐसा बोला कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये वाला। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये लाइन, तो क्या ये लाइन इसके, ये लाइन देखो, ये मैं बताऊं थोड़ा, चलो ये जो लाइन है, ये वाला लाइन, ओके, एक काम करता हूँ, थोड़ा कलर चेंज करता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये जो लाइन है एंड ये जो लाइन है, क्या ये दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है? यस सर। एंड ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है वो दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। यस सर। अगर ये दोनों के बीच में एंगल थीटा है तो दोनों के परपेंडिकुलर लाइन के बीच में भी एंगल थीटा ही होना चाहिए ना। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। जैसे हमने इसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे, एग्जैक्टली 90 डिग्री अगर रोटेट कर देंगे तो ग्रीन वाला ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड वाला रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रीन वाला ग्रीन में कन्वर्ट होगा, रेड वाला रेड में कन्वर्ट होगा, बट उसके बीच में एंगल तो वही का वही रहेगा। इज दैट क्लियर? यस सर। तो उसको वैसे जियोमेट्री से भी प्रूव कर सकते हैं, बट ये आपके लिए इजी रहेगा। ओके, तो अब मेरा जो टारगेट है ना, वो मुझे एन क्यू फाइंड करना है। तो फ्रॉम फिगर in the triangle, consider the triangle LNQ, तो उसमें साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा देखो तो। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस ट्राइंगल, मैं ना ये ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। एन क्यू अपॉन एल एन। तो ये अगर ट्राइंगल आप कंसिडर करते हो तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो आपका अपोजिट साइड है एन क्यू एंड हाइपोटेनियस क्या है भैया? बोलो बोलो। एल एन। Then, अब मान लो कि ये जो स्लिट है ना, उसका जो विड्थ है, अज्यूम करते हैं कि स्लिट का जो विड्थ है ना वो ए है। मान लो कि इसका जो डिस्टेंस एल टू एम का जो डिस्टेंस है ना, उसको ए मान लेते हैं। ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाला, इसको मान लेते हैं कि वो ये डिस्टेंस ए डिस्टेंस है। तो एन क्यू इज इक्वल टू, मुझे क्या लिखना चाहिए तो फिर, एल एन साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, द अपोजिट एन क्यू, हाइपोटेनियस एल एन। तो एल एन का वैल्यू मैंने बताया कि ए है, तो एन क्यू इज इक्वल टू एल एन साइन थीटा, बट एल एन जो है ना वो ए है, तो कहना इसे ए साइन थीटा। यस और नो? यस। तो अब जाके मुझे पता चला कि पाथ डिफरेंस बिटवीन बिटवीन विच टू पॉइंट, बिटवीन एन एंड एल इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा। चलो ये चीज समझ में आया भैया? यस सर। तो अब आपको ये याद रखना है, मतलब सबसे ऊपर का जो पॉइंट है वो एल है, सबसे नीचे का जो पॉइंट है वो एन है, तो उन दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस क्या होगा? तो बोले थियोरी जियोमेट्रिकली इट इज एन क्यू, इट इज एन क्यू, बट एन क्यू इज फाउंड टू बी अ ए साइन थीटा। इज दैट क्लियर? यहां तक समझ में आया? यस सर। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि डिस्टेंस बिटवीन, देखो अब मैं जो बोला उसको ध्यान से सुनना, डिस्टेंस बिटवीन एल एंड एन is A, and hence the part difference comes out to be, how much? ए साइन थीटा। A sin theta। सर यहाँ पे पी पॉइंट तो एक ही है ना, तो सर एल पी माइनस एन ये है ना, बहुत मेरी बात सुनो, ये जो स्क्रीन होता है ना, वो यहाँ पे जो एंगल थीटा होता है उसके रिस्पेक्ट में बहुत दूर होता है।
तो ये सारे पॉइंट कोई एक ही पॉइंट पे, सारे रेस भले ही पैरेलल है बट हम ऐसा मान के चल सकते हैं वो सारे एक ही जगह पे मिलते हैं पॉइंट पी पे, बिकॉज वो पॉइंट बहुत दूर दूर होता है। ओके, आपको ये पता होगा कि ये जो स्लिट विड्थ होता है ना, ओके स्लिट विड्थ जो होता है ना वो मिलीमीटर के ऑर्डर का होता है, और आपका जो स्क्रीन होता है ना, स्क्रीन डिस्टेंस वो आपको पता होगा कितने ऑर्डर का होता है, मीटर के ऑर्डर का होता है। That is why we can consider the point P for all the three rays are almost similar. Is that clear? यस सर। तो अब लास्ट में हमने ऐसा प्रूव कर दिया कि अगर L and N के बीच में डिस्टेंस A है, डिस्टेंस बिटवीन द L and N is A, then part difference is comes out to be A sin theta. तो अगर कोई दो स्लिट के कोई भी दो पॉइंट, अगर डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन any 2 point on a screen, any 2 point on a slit, any two sources, any two source, because ये सारे point as a source behave करेंगे, any two source on a slit is y, then what should be the part difference? तो फिर part difference क्या होना चाहिए? y sin थीटा। y sin थीटा। चलो ये बात आपको समझ में आई, ये लॉजिक समझ में आया? यस सर। सर और ये जो जनरल फॉर्मूला है उसके ऊपर से हम ये n लैम्बडा वाला स्पेशल केस कैसे ला सकते हैं? क्या बोल रहे हो? सर ये जो फॉर्मूला मिली हमें वो तो जनरल फॉर्मूला हुई ना, क्या? ये y sin थीटा वाली। हाँ, y sin थीटा, देखो n लैम्डा अलग चीज है, उसके साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। वो y sin थीटा हमको मिला, उसके साथ n लैम्डा का कोई लेना देना नहीं है। ओके अभी तो मैंने आपको दो ही चीज समझाई। कौन से दो चीज? एक तो जो रेज सीधे जाएंगे जिसका एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन 0 है, जो डिफ्रैक्शन नहीं कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, वो सीधे सीधे जाएंगे। वो एक दूसरे के साथ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे, और बिकॉज ऑफ दैट जो बीच वाला जो पॉइंट होगा वो एकदम 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 ब्राइट हो जाएगा, तो वो हमारा क्या हो गया, Central maxima. सेंटर मैक्सिमम। और वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्यों कर रहा है? बिकॉज उसका जो पाथ डिफरेंस है वो 0 है, सबके सेम पाथ है, तो पाथ डिफरेंस 0 होना मतलब देखो ये डिफ्रैक्शन पैटर्न फॉर्म करने के लिए इंटरफेरेंस तो करना ही पड़ेगा, इंटरफेरेंस तो होगा ही होगा, बट वहां पे सब लोगों का पार्ट डिफरेंस 0 है, तो पार्ट डिफरेंस 0 है तो मतलब उसका मतलब ऐसा हुआ कि उन लोगों के बीच में कंस्ट्रक्ट एन लैम्डा का फॉलो होगा, 0 मतलब एन इक्वल टू 0, तो कंस्ट्रक्टिव होगा। अब यहाँ पे जो मैंने पार्ट डिफरेंस डिराइव किया है वो किसके लिए किया है? वो जो सीधे जा रहे हैं उसके लिए नहीं, जिसका डिफ्रैक्शन एंगल थीटा है, जिसका डिफ्रैक्शन एंगल थीटा है, तो उसके लिए अगर स्लिट के कोई भी दो पॉइंट के बीच में अगर डिस्टेंस ए है तो पार्ट डिफरेंस ए साइन थीटा, अगर कोई भी दो पॉइंट ले लेते हैं उसके बीच में डिस्टेंस y है तो पार्ट डिफरेंस y साइन थीटा। इज दैट क्लियर? अभी मैंने इतना ही समझाया और कुछ नहीं समझाया, वो दोनों अलग चीज है। इज दैट क्लियर? ओके सर। यस सर। ओके, तो एक में क्या था, एक में थीटा 0 था, तो जो थीटा 0 था तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और सेंट्रल मैक्सिमा फॉर्म होगा, वो हो गया। अब मैं ऐसे रेस को कंसीडर कर रहा हूं जिसका एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन थीटा है, तो उसके लिए मुझे क्या पता चला कि उसके लिए मुझे ये पता चला कि अगर पाथ डिफरेंस की जरूरत पड़ेगी तो हम लिख सकते हैं, अगर डिस्टेंस ए है तो ए साइन थीटा, अगर डिस्टेंस y है तो y साइन थीटा, अगर जरूरत पड़ी तो ये हम यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? यस चलो, तो अब मैंने सेंट्रल मैक्सिमा तो आपको एक्सप्लेन कर दिया, वो क्यों जनरेट होता है वो मैंने बता दिया, मैंने पाथ डिफरेंस की भी जरूरत पड़े तो उसका फॉर्मूला भी डिराइव कर दिया। अब मुझे क्या करना चाहिए, सेंट्रल मैक्सिमा हो गया, अब उसके आसपास क्या होता है, फर्स्ट मिनिमा एंड सेकंड हाँ, तो मैक्सिमा। सबसे पहले तो फर्स्ट मिनिमा आएगा, तो मैं है ना अब फर्स्ट मिनिमा का कंडीशन डिराइव करूंगा और उसके ऊपर से हम मिनिमाज, सेकंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा, सारे मिनिमास के कंडीशन हम डिराइव करेंगे। इज दैट क्लियर? बट अभी 28th क्वेश्चन को आपको समझ में आया? यस और नो? यस चलो, तो ये सेंट्रल मैक्सिमा क्यों फॉर्म हुआ?
उसका डिस्कशन हो गया भैया। और हाँ 28th क्वेश्चन में तो जस्ट लिखा हुआ है कि क्या होगा। यस, अरे बापू, बोगस, एकदम बोगस किया है फ्रेंड्स। 28th क्वेश्चन में तीनों चीज साथ में समझा दिया है, सेंट्रल मैक्सिमा, पाथ डिफरेंस, मिनिमास, मैक्सिमास, पूरा साथ में समझा दिया है। पूरा एक ही क्वेश्चन में सब कुछ खत्म कर दिया है। तो आपको ये 28 को कितने पार्ट में डिवाइड करके सोचना है? 4 पार्ट में। 3 तो 4, एक तो फर्स्ट पार्ट उसमें सेंट्रल मैक्सिमा तक, सेकंड पार्ट पाथ डिफरेंस, कोई भी पॉइंट पे अगर एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन थीटा है तो पाथ डिफरेंस होगा आपका a sin थीटा, अगर डिस्टेंस y है तो y sin थीटा। ये दूसरा पार्ट। अब तीसरा पार्ट मिनिमास एंड चौथा पार्ट मैक्सिमास। ओके, और ये बीच में एक और भी ये चीज किया हुआ है, एक और चीज बताया हुआ है कि अगर यंग्स एक्सपेरिमेंट है उसमें कितने स्लिट थे? यंग्स 2 एक्सपेरिमेंट 2 स्लिट थे। तो अगर 2 स्लिट में से अगर मैं एक स्लिट को बंद कर दूंगा तो अभी वो एक्सपेरिमेंट में क्या हो जाएगा? एक ही स्लिट बचेगा। तो फिर स्क्रीन पे क्या पैटर्न जनरेट होगा? अगर मैंने एक स्लिट को बंद कर दिया यंग्स एक्सपेरिमेंट में तो एक ही स्लिट बचेगा, और एक स्लिट की वजह से जो होता है वो क्या होता है? डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन होता है। तो फिर आपका जो इंटेंसिटी का जो पैटर्न है स्क्रीन के ऊपर वो चेंज हो जाएगा। जो अभी वो ऐसे हो जाएगा, देखो, देखा आपने यहाँ पे फिगर में? देखो सबसे सेंटर पे इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, देखो दिख रहा है आपको? यहाँ पे सेंटर पे सबसे इंटेंसिटी ज्यादा है, उसके बाद ग्रेजुअली इंटेंसिटी डिक्रीज होती जा रही है। देखो, देखा आपने? ये स्क्रीन का पैटर्न चेंज हो गया। वैसे हाँ एक्चुअली यंग्स एक्सपेरिमेंट में क्या था? एक्चुअली यंग्स एक्सपेरिमेंट में ये था, देखो इसका पैटर्न ऐसा था, ये रहा, ये रहा, देखो ये पैटर्न था। वहां पे सारे पॉइंट के इंटेंसिटी सेम थे, देखो दिख सकता है आपको? इज दैट क्लियर? यस सर। तो यहाँ पे बीच में एक और भी सेंटेंस ये लिखा है कि अगर यंग्स एक्सपेरिमेंट में अगर हम कोई एक स्लिट को बंद कर देंगे तो फिर स्क्रीन में क्या होगा? तो भाई अब स्क्रीन पे क्या होगा कि सेंटर पे जो फ्रिंज है, सेंटर पे जो फ्रिंज, उसका इंटेंसिटी सबसे ज्यादा रहेगा, और बाकी का सब ऊपर नीचे जाओगे तो इंटेंसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज होगा। तो देखो आपको पार्टीशन करना है तो कर दो। क्वेश्चन नंबर 28 में सबसे पहले सेंट्रल मैक्सिमा की बात है, वो यहाँ पे खत्म हो रहा है आपका। सेंट्रल मैक्सिमा का यहाँ पे खत्म हो रहा है, ये फिगर के बाद देखो सेंट्रल मैक्सिमा लिखा हुआ है। पहले फिगर का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, कैसे इंटरफेरेंस, कैसे डिफ्लेक्शन फिनोमिनन होता है वो समझाया हुआ है, और फिर सेंट्रल मैक्सिमा क्यों डेवलप होता है उसके बारे में यहाँ तक डिस्कस किया। तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हुआ, यहाँ पे आपका सेंट्रल मैक्सिमम का क्वेश्चन खत्म हुआ, ये पार्ट 1 हुआ आपका। ओके, सेकंड पार्ट, उसके बाद वो पाथ डिफरेंस की बात है। वो पाथ डिफरेंस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, वो पूछने के लिए नहीं है, वो आपको याद रखना है उसका फॉर्मूला, वो पूछने के लिए नहीं है। बट हमने डिराइव कर दिया कि अगर पाथ डिफरेंस, अगर डिस्टेंस ए है तो पाथ डिफरेंस ए साइन थीटा होगा। अगर कोई भी पॉइंट का, अगर यहाँ पे नहीं लिखा है बट मैं आपको बता दूं कि अगर कोई दो पॉइंट के, अगर कोई भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस y होगा तो आपका पाथ डिफरेंस हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हो, for y distance between the 2 point your path difference will be equals to y sin theta. ओके, तो ये पार्ट डिफरेंस यहाँ पे खत्म हो गया, ये आपका दूसरा पार्ट खत्म हुआ। अब मैं क्या समझाने वाला हूँ आपको, बोलो? मिनिमास। मिनिमा। ये आपका तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ। तो मतलब यहाँ पे चारों क्वेश्चन एक साथ कर दिए हैं। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। तो अब मिनिमा, तो पहले हम है ना फर्स्ट मिनिमा डिस्कस करेंगे, उसके बाद सारे मिनिमास के बारे में डिस्कस करेंगे। So to understood the minimas, we'll consider the slit is to be divided into 2 parts. To consider the minima, I will assume the slit is divided into 2 parts. सर तो ये क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, मतलब पूरा तो क्वेश्चन पूछेंगे कि नहीं, पूरा सीधा एक्सप्लेन करो? ऐसा ही नहीं है, सीधा ऐसा ही पूछेंगे कि draw the figure for by the single slit diffraction and explain the central maxima, explain the minima and explain the first minima and condition for the minimas, explain the first maxima and condition for the central first maxima, explain the first maxima and condition for the maximas। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे आपको 3 मार्क्स में।
अलग अलग, एक साथ नहीं पूछेंगे. ओके. ओके सर. Okay. So friends, to understood the first minima, just consider our slit is to be divided by the slit is divided into two equal fragment, two equal parts. तो हमारा स्लीट यहाँ पे दो पार्ट में कंसीडर कर सकते हैं हमको उसको. फिगर थोड़ा मैं लार्ज करता हूँ. देखो ये रहा. थोड़ा समझ लेना फ्रेंड्स, बिकॉज आपके टेक्स्ट बुक में इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है. जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लेना. देखो, तो मुझे ये बताओ कि अगर मैंने ये स्लिट को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एल एम एंड एम एन, तो ये दोनों का वैल्यू कितना होगा? स्लिट का लेंथ ए है, विड्थ ए है. Suppose the slit is made by two equal parts, LM and MN. तो मुझे ये बताओ कि LM एंड MN दोनों का लेंथ कितना होगा? A/2 होगा. इज दैट क्लियर? Yes, sir. चलो, नाउ सपोज, अब जो ना वो ध्यान से सुनना. सपोज द डिफ्रैक्शन एंगल थीटा इज सच दैट, ये मैंने बहुत सारे अलग अलग एंगल पे रेज है ना डिफ्रैक्ट होते हैं, बट मैं ऐसा ही एंगल कंसिडर करूंगा इज सच दैट एन क्यूब बिकम्स लैम्डा. तो मैंने ऐसा डिफ्रैक्शन एंगल चूज किया हुआ है. बहुत अलग अलग सारे अलग अलग बहुत सारे एंगल पे रेज डिफ्लेक्ट होते हैं, बट मैंने उसी रेस को कंसिडर किया है, उसी रेस को कंसिडर किया है कि जिसका डिफ्रैक्शन एंगल ऐसा है सो दैट ये जो एन एल एन से क्यू का जो वैल्यू है ना वो एग्जैक्ट लैम्डा हो. ये वैल्यू एग्जैक्ट लैम्डा है, मैंने ऐसा कंसिडर किया है. बट आपको ये पता होगा कि बट ये तो पता है कि एन क्यू का तो वैल्यू कितना हमने डिराइव किया था, a sin theta. So can I say a sin theta is equals to lambda now? Yes or no? ये हमारा यार Yes. ये पाथ डिफरेंस था हमारा. पाथ डिफरेंस के थ्योरी में हमने ये प्रूव किया था. Yes or no? Yes, sir. Now distance between L and M is, चलो मुझे ये बताओ कि L and M के बीच में कितना डिस्टेंस है? बताओ, ये L से M के बीच में कितना डिस्टेंस है? A/2. A/2. So path difference between them, तो उसके बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा? L एंड M के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा? याद करो, अगर डिस्टेंस y होता तो पाथ डिफरेंस y sin थीटा. तो अगर डिस्टेंस A/2 है तो क्या होना चाहिए? A/2 A by sin 2 theta. sin theta. बट फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 a sin थीटा तो क्या है? Lambda. तो फिर ये क्या हो जाएगा? Lambda by 2. तो λ/2 मतलब कौन सा डिफ्लेक्शन होगा, कौन सा इंटरफेरेंस होगा? बिटवीन source L and M, which kind of interference takes place?
लैम्डा बाई 2 हुआ पार्ट डिफरेंस, तो कौन सा इंटरफेरेंस होगा? डिस्ट्रक्टिव। तो between them there is a destructive interference takes place. तो इन दोनों का इफेक्ट एक दूसरे के द्वारा, दोनों का इफेक्ट एक दूसरे के द्वारा कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसल आउट हो जाएगा। अब से सोचो कि L एंड M का जो मिडिल पॉइंट है वो M1 है। यहाँ पे इन पहले पार्ट का मिडिल पॉइंट है ना वो M1 है, और दूसरे का मिडिल पॉइंट M2 है। तो M2 M1 और M2 के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? इन दोनों के बीच में, M1 M2 के बीच में कितना डिस्टेंस होगा? ए। क्या ये होगा? ये तो पूरा डिस्टेंस ए है भैया। मैं तो M1 एंड M2 के बारे में बोल रहा हूँ, A/2। A/2। तो फिर उसके बीच में भी A/2 डिस्टेंस है, तो उन दोनों के बीच में भी पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा? λ/2। तो वहां पे भी क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव। तो सेम थिंग विल हैपन फॉर एवरी पॉइंट्स लाइक M1 और M2। एम आई राइट फ्रेंड्स? तो मतलब क्या हुआ कि LM पार्ट में ये L से M का बीच में LM के बीच में जितने भी पॉइंट है, तो एक एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में मुझे यहाँ पे LM के अंदर एक एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में मुझे यहाँ पे एक एक पॉइंट मिलता ही जाएगा, मिलता ही जाएगा, मिलता ही जाएगा, सो दैट एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा। मतलब ये पूरे LM पार्ट के हर एक सोर्स के साथ MN पार्ट का एक एक सोर्स मिलता जाएगा कि एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करता ही जाएगा, करता ही जाएगा, करता ही जाएगा। तो फाइनलाइजली यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? डिस्ट्रक्टिव इंफरेंस। So I can say the effect by LM and MN part will cancel by each other. Am I right, friends? And सर तो वापस से मैक्सिमा तो बनेगा ही नहीं। तो वहां पे क्या हमको कन्फर्म करना है? So that point on the screen became dark, and that is which is our फर्स्ट मिनिमा। which is first minima। और ऐसा एक पॉइंट नहीं मिलेगा। ऐसे जैसे ये ऊपर की साइड थीटा एंगल है, तो ऐसा ही नीचे की साइड भी थीटा एंगल होगा ना। ऐसे भी आपका नीचे की साइड भी एंगल थीटा ही होगा एक। तो ऊपर जैसा होगा ऐसा ही नीचे की साइड होगा। मतलब ये पूरा फिगर तो सिमेट्रिक ही रहने वाला है। जो चीज ऊपर होने वाली है वही चीज नीचे होने वाली है। तो नीचे की साइड भी आपको ऐसा पॉइंट मिलेगा। बट आप 3 डायमेंशनली सोचो, तो यू विल नॉट ओनली गेट अ 2 पॉइंट्स, यू विल गेट द होल सर्कल। इफ यू थिंक अबाउट दिस, देखो ये हमारी जो आंख है उसके साथ सेम एंगल बने ऐसा एक पॉइंट नहीं मिलेगा, आपको पूरा एक सर्कल मिलेगा। देखो सोचो, कैन यू इमेजिन? ये तो 2 डायमेंशन, हाँ यस सर, 3 पूरा डायमेंशनली एरिया कवर होगा। हाँ पूरा एरिया कवर होगा, मतलब पूरा सर्कल मिलेगा। इज इट क्लियर? यस सर यस। हमारा ये क्या हो गया? हमारा फर्स्ट मिनिमा। तो फाइनली वी कैन से फॉर first minima the angle should be taken such that this condition satisfied. For first minima our angle should be choiced in such a manner that, now let us consider this angle is theta 1. So for the first minima I should say a sin theta 1 should be equals to 1 lambda. Is that clear? So what should be the condition for the second minima? तो सेकंड मिनिमा के लिए वो कंडीशन क्या हो जाएगा? 2 लैम्डा। On same way for second minima
the condition should be a sin theta 2 should be equals to 2 lambda, and for nth minima the condition is a sin theta n, एंगल बढ़ता जाएगा फ्रेंड्स, एंगल बढ़ता जाएगा, that should be n lambda. So that is the conditions for the minimals n lambda, where n start from 1 to 3 onwards. तो ये पूरा मिनिमास खत्म हुआ। क्या ये चीज आपको समझ में आई भैया? यस सर। तो ये मिनिमास का खत्म हुआ। अब मैं क्या करने वाला हूँ? मैक्सिमा। मैक्सिमा। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन खत्म हुआ। मैंने बहुत ही अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। अगर शायद बुक में से या टेक्स्ट बुक में से समझ में ना आए तो इसको रीड कर लेना एक बार। सर आप 1 आवर और 15 मिनट्स का लेक्चर रखो ना। तो अभी हम एक टॉपिक बाकी है आज का, अब मैक्सिमा डिस्कस कर लेते हैं। तो इसी बेस पे आगे बढ़ना है, थोड़ा ध्यान रखना, बिकॉज ये सारे टॉपिक ऐसे हैं कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, कभी नहीं। डोंट गो एनीवेयर, 10 मिनट लगेंगे, शांति से सुन लेना। तो क्वेश्चन ऐसा है कि नाउ एक्सप्लेन द फर्स्ट मैक्सिमा एंड डिराइव द कंडीशन फॉर द मैक्सिमास। ओके, तो यहाँ पे मैक्सिमा का फिगर ही नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे फर्स्ट मैक्सिमा फॉर्म करने का फिगर नहीं दिया हुआ है, तो मुझे वो ड्रॉ करना पड़ेगा। 10 मिनट लगेंगे, आप कहीं पे मत जाना, पूरा समझ के सुन के जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वो टेक्स्ट बुक में अच्छे से दिया भी नहीं है, फिगर भी नहीं दिया हुआ है, तो ध्यान से मेरी बात सुन लेना। ओके, सर लास्ट 15 मिनट्स में तो हम एग्जॉस्ट हो जाते पूरे। वो आपकी मेंटालिटी है और कुछ नहीं। सर बट आप ऐसा रखो ना कि आप एग्जैक्ट 1 o'clock। अरे वैसे भी मैं 1.5 घंटा लेक्चर लेता ही नहीं हूँ, मेरा स्टार्ट ही लेट होता है 15 मिनट, और हार्डली 1 आवर 10 मिनट्स का लेक्चर होता है, हार्डली। मुझे पता है कि आप मतलब आपका मेंटलिटी क्या है। वैसे आदमी 14 घंटे 15 घंटे काम करता है तो भी कुछ नहीं होता, वो सब ये पूरा चीज़ है ना, वो आपका माइंड सेट है। तो आपको साइंस में थोड़ा माइंड सेट करना होता है। मैं मेरे खुद की बात करूँ तो मैं आज की तारीख से, मैंने 12th स्टैंडर्ड से ये काम किया था, 11th स्टैंडर्ड से काम करना स्टार्ट किया था। तो मैं आज की तारीख में भी आराम से 15 घंटे, 12-15 घंटे काम करता हूँ दिन का। तो ये पूरा चीज़ जो है था वो माइंड सेट होता है और कुछ नहीं। एग्जॉस्ट होना ना होना ये सब मेंटल चीज़ है। तो फ्रेंड्स अब क्या करेंगे हमने सेंट्रल मैक्सिमा पढ़ लिया, फर्स्ट मिनिमा एंड मिनिमास के कंडीशन हमने पढ़ ली है। अब जो करेंगे वो हम क्या करेंगे, मैक्सिमा एंड मैक्सिमास के कंडीशन पढ़ेंगे। पहले फर्स्ट मैक्सिमा पढ़ेंगे, उसके बाद मैक्सिमास के कंडीशन पढ़ेंगे, डिस्प्रूव करेंगे उसको। तो टू अंडरस्टूड द मैक्सिमा आई एम गोइंग टू डिवाइड दिस स्लिट इनटू द 3 पार्ट्स। तो अभी तक मैंने स्लिट को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, बट अब मैं है ना स्लिट को 3 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ। तो मान लो कि मैं है ना इस स्लिट को 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ, L x1 x2। ये थ्योरी प्रॉपरली आपके टेक्स्ट में नहीं दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो थोड़ा सुन के जाना, डोंट गो एनीवेयर। लेट स्लिट ln is made by 3 part।
सर यही फिगर में कहाँ पहले मिनिमा होगा वो दिखा दो ना। देखो सीधी सी बात है कि एग्जैक्ट सेंटर पे जो होगा होगा क्या होगा, मैक्सिमा। मैक्सिमा होगा। उसके थोड़ा अगर एंगल बढ़ाएंगे तो उसके आसपास क्या होगा, वहाँ पे भी मैक्सिमा होना चाहिए। मतलब ज्यादा एंगल बढ़ा दिया, मतलब मैक्सिमा खत्म होने के बाद। मिनिमा। फर्स्ट मिनिमम। तो ये जो पूरा होगा वो पहले सामने की साइड जो होगा मैक्सिमा, उसके बाद मैंने मिनिमा कहाँ पे होता है वो बात कर दिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि फर्स्ट मैक्सिमा, तो फर्स्ट मैक्सिमा का एंगल फर्स्ट मिनिमा से भी ज्यादा आएगा। तो हमने अभी जो एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन लिया था उससे एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन में क्या करूंगा, ज्यादा करूंगा। पहले जो हमने एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन लिया था जो फर्स्ट मिनिमा के लिए, उससे भी हम एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन ज्यादा लेंगे तो मुझे फर्स्ट मैक्सिमा मिलेगा। मैं वही अभी करने वाला हूँ, मैं वही अभी करने वाला हूँ। तो ओके, सर वैसा नहीं, मतलब ये जो एल एन आपने बनाया उसमें ही अपन एक पॉइंट मार्क कर दो ना कि यहाँ पे हमने जो मिनिमा पड़ा है वो। यहाँ पे थोड़ी मिनिमा मैक्सिमा, वो तो स्क्रीन पे बनेगा ना, ये तो स्लिट है और ये हमारा वेव फ्रंट इज। मतलब यहाँ पे जो पॉइंट्स हो गए उससे जो होगा। देखो ऐसा होता है कि मैक्सिमा एंड मिनिमा का जो लेंथ होता है वो आपका स्क्रीन कितना दूर है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। अब मैं प्रूव करूंगा कि विड्थ ऑफ द मैक्सिमा, आई विल गोइंग टू प्रूव विड्थ ऑफ मैक्सिमा इज इक्वल्स टू लैम्बडा कैपिटल डी बाई ए। ये 2 लैम्बडा डी बाई ए है उसका विड्थ, वो आपका स्क्रीन कितना दूर है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। सो आई कैन नॉट शो दैट दिस इज द पॉइंट। ओके, स्क्रीन के ऊपर देखो, आप सीधी सी बात है, आप एक काम, एक टॉर्च है ना आपके पास, तो आप टॉर्च को थोड़ा दूर ले जाना तो ऑटोमेटिकली ये जो विड्थ होगा ना वो आपका जो पैटर्न होगा ना वो बढ़ेगा, आपको डेफिनेटली आपको दिखाई देगा। टॉर्च को आप जितना दूर ले जाओगे तो आपका जो पैटर्न है ना वो ब्रॉडनेस बढ़ेगा आपका। ओके, हाँ। तो वही चीज, यस सर। वही वही हो रहा है यहाँ पे। इज इट क्लियर? यस सर। तो let the slit ln is made by 3 parts. So can I say lx1, x1, x2 and x2n। x2n, and that all should be equals to e by 3। चलो ये समझ में आया फ्रेंड्स? हाँ के ना तो बोल दो। हाँ सर। अब इसको पॉइंट पी डैश बोल देते हैं, चलो ओपी था तो उसको पी डैश बोल देते हैं। और यहाँ पे ये नॉर्मल ड्रॉ करेंगे इससे, तो ये पॉइंट उनको उसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे क्यू। तो फ्रेंड्स सीधी सी बात ऐसी है कि अगर ये डिस्टेंस थीटा है, ये एंगल थीटा, ओके थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, कलर को चेंज करते हैं। तो अगर यहाँ पे थीटा फॉर्म हो रहा है तो यहाँ पे भी थीटा होगा भैया। ओके, यस सर। नाउ let angle of diffraction theta dash is such that our nq should be larger than the lambda or less than lambda। पहले जो था वो लैम्डा, हमने लैम्डा अज्यूम किया था nq का वैल्यू, तो हमने थोड़ा एंगल इंक्रीज किया है, तो ये nq का वैल्यू बढ़ेगा या डिक्रीज होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो वो ऐसा मान के चलते हैं कि वो 3 लैम्डा बाई 2 हो रहा है। तो ऐसा मान लो कि हमने ऐसा ही एंगल कंसिडर किया है कि ये जो है ना उसका वैल्यू एग्जैक्टली 3 लैम्डा बाई 2 हो। सो दैट्स वाई, अब आपको पता है कि एन क्यू तो क्या था, तो वो तो हमको एज अ थ्योरी वो तो ए साइन थीटा था। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि ए साइन थीटा शुड बी नाउ इक्वल्स टू 3 लैम्डा बाई 2 थीटा डैश।
चलो, क्या ये चीज आपको समझ में आया फ्रेंड्स? मैंने ऐसे बहुत, देखो अलग अलग बहुत एंगल पे रेज डिफ्रैक्ट होते हैं, बट मुझे पर्टिकुलरली कौन सा एंगल लेना था वो आपको पता नहीं था, बट मुझे पता था। तो मैंने ऐसे ही रेज को कंसिडर किए हैं कि जिसका एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन ऐसा है, सो दैट एन क्यू बिकम्स 3 λ/2। तो ये एन क्यू का वैल्यू 3 λ/2 लेंगे हम। ऐसे ही ऐसा ही मैंने एंगल चूज किया है, तो उससे बेनिफिट क्या होगा, तो उससे क्या बेनिफिट होगा वो आपको 5 मिनट में समझ में आ जाएगा। नाउ સર બટ આ NQ 3 λ/2 કઈ રીતે થયું? वो मैं वही तो बोल रहा हूं, मैं वो आपको नहीं पता था। देखो, बात ऐसी है कि स्क्रीन पे अलग अलग जगह पे, कहीं पे फर्स्ट मैक्सिमा होगा, कहीं पे सेकंड मैक्सिमा होगा, कहीं पे थर्ड मैक्सिमा होगा। तो वो कौन से एंगल पे होता है वो आपको नहीं पता था, बट मुझे पहले से ही पता था। तो मैंने आंसर को पहले ले लिया, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूं। समझ में आया मैं आपको? पहले मुझे आंसर पहले से ही पता था, तो मैंने डायरेक्टली कि भाई ये एंगल ऐसा है कि बिकॉज ऑफ दैट एन क्यू 3 λ/2 है। अब जाके मैं प्रूव करूंगा कि भाई ऐसा एंगल लेने से बेनिफिट क्या होगा, कि वहां पे क्या डेवलप हो जाएगा, वहां पे हो जाएगा फर्स्ट मैक्सिमा। फिर पूरा उल्टा लिखेंगे, तो फिर इसका मतलब ऐसा होगा कि जो फर्स्ट मैक्सिमा अगर डेवलप करना है तो मुझे ये एंगल लेना पड़ेगा। इज क्लियर? इस हिसाब से ये यस जा रही है, इस हिसाब से ये थ्योरी जा रही है। इज क्लियर? यस सर યસ સર. नाउ डिस्टेंस बिटवीन L एंड x1 इज, कितना है उसके बीच में डिस्टेंस? L एंड x1 के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? A/3. a/3। तो फिर फ्रेंड्स, उन देन व्हाट शुड बी द पाथ डिफरेंस? पाथ डिफरेंस बिटवीन देम A/3 sin theta. a/3 sin थीटा। बट फ्रेंड्स ये a sin थीटा तो क्या है? अभी a sin थीटा तो क्या है भैया? बोलो, अरे बोल भी दो। Lambda. 3 λ/2 है, तो पुटिंग a Yes. 3 λ/2, तो बचेगा क्या फिर? λ/2। So between L and x1, which kind of interference takes place? बोलो, डिस्ट्रक्टिव। Constructive. अरे λ/2 आया, तो λ/2 के लिए Destructive. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस। तो ये दोनों का इफेक्ट एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा। सिमिलर वे ये L से x1 पूरा जो रीजन है उसका इफेक्ट x1 x2 के द्वारा कैंसिल हो जाएगा। अभी जो हमने डिस्कस किया था आगे की थ्योरी में, सिमिलर वे। सो दे विल cancel effect of either, will cancel effect of each other. This way, the similar way, effect of Lx1 part is cancelled by which part? x1 x2 part। तो फर्स्ट दो पार्ट के जो इफेक्ट है वो कैंसिल हो जाएगा, बट जो तीसरा वाला पार्ट है x2n, तो उसका इफेक्ट तो उसका तो रहेगा. cancel नहीं होगा, वो उसका इफेक्ट कैंसिल नहीं होगा। बट द इफेक्ट ऑफ दिस थर्ड पार्ट इज नॉट गोइंग टू बी कैंसल्ड, तो वो तो वहां पे रहेगा ही रहेगा।
Is that clear, friends? Yes, sir. तो फिर क्या होगा? But effect of x2n part will be produced at screen. तो स्क्रीन पे कुछ ना कुछ तो इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, तो वहां पे थोड़ा तो इंटेंसिटी मिलेगा, बट डेफिनेटली वो जो इंटेंसिटी होगा वो सेंट्रल मैक्सिमा से, देखो दो पार्ट तो कैंसिल हो गए ना, दो पार्ट तो कैंसिल हो गए, एक ही थोड़ा ही इंटेंसिटी मिलेगा ना, तो वो सेंट्रल मैक्सिमा से डेफिनेटली कम। कम ही रहेगा. सो देयर विल बी सम इफेक्ट प्रोड्यूस्ड एट द स्क्रीन, बट it will be less intense than central maxima. This is called क्या लिखना चाहिए? फर्स्ट मैक्सिमम. तो क्या ये चीज समझ में आया फ्रेंड्स? सो अब उल्टा, तो फिर कंडीशन फॉर द फर्स्ट मैक्सिमा क्या होना चाहिए? तो अब उल्टा कंडीशन फॉर द फर्स्ट मैक्सिमा क्या होना चाहिए? तो जो हमने एंगल ऐसा लिया था, condition for the first maxima is our angle should be such that our angle should be such that the a sine theta 1 dash is equals to 3 lambda by 2. So this is the condition for the first maxima. तो to understand, अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, to understand second maxima, slit should be divided into 5 parts. तो यहाँ पे लास्ट में 3 लैम्डा बाई 2 आता है LM का वैल्यू, ये वैल्यू मैंने 3 लैम्डा बाई 2 कंसीडर किया था, तो अगर 5 पार्ट में डिवाइड करूं तो हाउ मच लैम्डा बाई 2 आई शुड कंसीडर? बोलो. 5 lambda by 2. Yeah, exactly. So condition for that. So condition for a second maxima should be a sine theta 2 dash should be 5 lambda by 2, and for nth maxima it should be a sine theta n. चलो बताओ मुझे. n plus 1 lambda by 2. 2n plus 1 lambda by 2 भैया. n plus 1 करोगे तो नहीं होगा ना, देखो आप सोचो, अगर n plus 1 करोगे तो n equals to 1 प्लेस करोगे तो वो 2 lambda by 2 मतलब लैम्डा आ जाएगा, आपका हो जाना चाहिए 2n plus 1. अगर वहां पे आप n is equals to 1 2 3 प्लेस करते जाओ तो आपको 3 5 7 मिलता जाएगा. इज दैट क्लियर? Yes, sir. n is equals to 1 2 3. आया बात समझ में भैया? Yes sir. Yes, तो sir. ये आपका कंडीशन हो गया nth मैक्सिमम का, where n start from 1 2 3 etc. So this is all about the maximas. ये थ्योरी प्रॉपर्ली नहीं दिया हुआ है आपके बुक में, neither they had given the figure as well, खाली बोल दिया है कि हो रहा है सब, बट आपको समझ में आया भैया? Yes, sir. तो ये मैक्सिमा का कंडीशन मिला. तो फ्रेंड्स आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़े. मैक्सिमा, मिनिमा, सेंट्रल मैक्सिमा, उसके कंडीशंस हमने डिस्कस किए. कंक्लूजन इज दैट अगर कोई ऐसा पूछे कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर द सेंट्रल मैक्सिमा, तो लिखना है कि आपको एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन शुड बी 0.
angle of diffraction should be 0. That is the condition for the central maximum. What is the condition for the maximas, minimas? So condition for the minimas is angle of diffraction should be such that a sin theta is equals to n lambda. That is the condition for the minimas. And condition for the maximas, the angle of diffraction should be such that a sin theta should be equals to 2n plus 1 lambda by 2. Where n start from 1 to 3. So these are the condition for the maximals. तो क्या फ्रेंड्स ये पूरा डिफ्रैक्शन टॉपिक समझ में आया आपको? फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन? यस सर। यस सर। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डिफ्रैक्शन के बीच पे फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के बेस पे न्यूमेरिकल जो 3-4 बाकी है वो नेक्स्ट लेक्चर में ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो डोंट मिस द नेक्स्ट लेक्चर। ये चैप्टर खत्म। 11 मार्क्स का वेटेज आपके बोर्ड के एग्जाम में। एनसीआर सीबीएसई सर, आप बोर्ड में કેટલા मार्क्स में पूछा है? क्या बोल रहे हो? ये क्वेश्चन सर, आ क्वेश्चन बोर्ड में કેટલા मार्क्स में पूछा? 3 मार्क्स। वैसे इस चैप्टर का जो सर, आखो मैक्सिमम मिनिमम सेंट्रल नो आंखों तो ना पूछा है ना, आंखों नहीं पूछा है। बाइफरकेशन देंगे वो लोग, डोंट वरी। तो એટલે का तो मैक्सिमा का तो मिनिमा। देखो मैंने बताया 3 क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। एक ये पूछ सकते हैं कि डिस्कस द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। सेकंड, डिस्कस द फर्स्ट मिनिमा एंड डिराइव द कंडीशन फॉर द मिनिमास। एंड थर्ड, डिस्कस द फर्स्ट मैक्सिमा एंड डिराइव द कंडीशन फॉर द मैक्सिमास। ये 3 क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं इसमें से। इज दैट क्लियर? यस सर। तो फ्रेंड्स आज का सेशन में यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। आप प्लीज प्लीज प्लीज, ये टॉपिक ऐसा था कि वो आज के दिन पे ही आप कर लो, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। ओके, तो आज का सेशन यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। फ्रेंड्स आपको फीस भी पे करना है, मैंने मैसेज किया हुआ है। सो यू नीड टू पे द फीस एज वेल। ओके।